Alright, so today we are starting chapter classification of organism. This is the second chapter in biology, and I'm starting from this chapter because this is a difficult one. First chapter is quite easy. Alright, so that will be not a problem. So let us start with chapter 2, that is classification of organism. You will get the printed module. जो यहाँ पे तुम्हें notes दिख रहे हैं, you will get the printed module, and you can also get it at home as well. ठीक है? Karamjot, since you do not live nearby, so what you can do is you can go to Amazon and you can search for ProScience modules. Okay, and I'll adjust the charge of the notes in your fees as well. Okay, so what you can do is you can buy the notes from here. Biology notes will be here, and you can get it at your home. Okay, I'll adjust the fees in your I'll adjust the charge in your fees. Is it okay? It doesn't cost much, just 100 or 125. That is it. Alright, so the thing is we are talking about, so you don't have to write all this. This you will get printed module. Okay? You don't need to worry about it, but whatever I write from my pen, you have to write it in your notebook. Alright, so let us begin with classification of organisms, and first one is, let us talk about, the thing is, why do we need to classify organisms? If we talk about why do we really need to classify organisms? Yes, classification को हम एक term देते हैं in biology, and we call it taxonomy. ठीक है? Classification को एक name दिया जाता है, scientific name, and that is called taxonomy. Taxonomy is nothing but classifying organisms. And why do we need to classify organisms? If this is our question, then we have to say that the need of classification, the classification or taxonomy makes it easier for us, makes it easier to study organisms. ठीक है? Organisms को study करने में हमें आसान करता है. ठीक है, classification में if I have to write one more point about classification, I can say that it is the method of grouping the organisms into convenient categories. So I am saying it is the method of grouping the organisms into convenient categories. Convenient categories, or categories को what do we call them? We call them taxa. We call categories as taxa. तो हर एक category को taxa बोलते हैं. For example, I put different breeds of dogs in different categories such as Pomeranian. This is Rottweiler. So these are dogs varieties, right? But I am classifying or grouping the similar type of dogs into one category. So any category will be called taxa. Taxa is the name of category. Is this point clear to everyone? Yes or no? So earlier the first method attempts to classify, first method was given by Aristotle, and Aristotle's method was very easy. It was very easy. He said कि let us classify organisms into two kingdoms, plants and animals. So he gave two kingdom classification. He gave two kingdom classification. That means classifying organisms as just plants and animals. So obviously there were many organisms that did not fit in either of the two. ऐसे बहुत सारे organisms थे जो ना plants कहलाते हैं ना animals कहलाते हैं. So how do we classify them? This became a problem. ठीक है? So the thing is, अगर हमें बात करनी है
about different organisms, first we need to talk about cellular structure, because classification में सबसे basic चीज़ है कि हमें ये पता हो कि cellular structure के basis पे कैसे organisms को differentiate किया गया है. तो the thing is, अगर हम बात करें cells, there are major two types of cells, okay, and these are prokaryotic cells. You have to write this, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, I'll check your notes later on. And eukaryotic cells. ये हम क्यों कर रहे हैं? Why are we talking about prokaryotic and eukaryotic cell? Because इन्हीं cells के basis पर we will be classifying them into different taxas. Talking about prokaryotic cell. Prokaryotic cell क्या होता है? Like a cell of bacteria. Pro means early. अर्ली फॉर्म, जैसे कि पुराना, दैट इज प्रो, एंड यू का मतलब इज न्यू. तो दिस प्रोकैरियोटिक सेल डेवलप फर्स्ट एंड देन लेटर ऑन यूकैरियोटिक डेवलप. तो प्रोकैरियोटिक सेल पहले आए थे, दैट इज व्हाई दे आर प्रो. प्रो डजंट मीन कि दे आर नॉट गुड, बिकॉज बैक्टीरियाज आर मोर एफिशिएंट दैन इवन ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो प्रो का मतलब यहाँ पे अर्ली. ठीक है, तो अर्ली फॉर्म में अब अगर हम बात करें जो पहले सेल्स आए थे इस अर्थ पर, तो दीज सेल्स डिड नॉट हैव अ न्यूक्लियस, तो दे लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इनके अंदर न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं होती, सो दे लैक अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इनमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. और अगर हम यूकैरियोटिक सेल में बोलें तो दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने से क्या होता है? व्हाट हैपेंस? तो द थिंग इज, इन अदर वर्ड्स, इफ यू ऑब्जर्व अ प्रोकैरियोटिक सेल, इट विल नॉट, यूजुअली प्रोकैरियोटिक सेल में फ्लैजेला, सीलिया जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं. ठीक है, जैसे प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया में, इनके अंदर न्यूक्लियस ही नहीं दिखता, न्यूक्लियस नहीं है, बट एक डेंस रीजन जरूर होता है, एक डेंस रीजन जरूर होता है, बट दैट इज नॉट न्यूक्लियस. ठीक है, और दैट इज वन सेकेंड. और अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं दे हैव, वन सेकेंड, ये जो स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड. The structure is called nucleoid. All right. And अगर हम एक यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि एक प्लांट सेल और एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो उनके अंदर क्या होता है? देयर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब न्यूक्लियस को एनक्लोज करने वाली मेम्ब्रेन होती है. और तो देयर इज अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और यू कैन कॉल it as that they have a nucleus. ठीक है, न्यूक्लियोइड एक ऐसा रीजन है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है. ये किन में होती है? प्रोकैरियोटिक सेल में. यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो न्यूक्लियर के मटेरियल को एनक्लोज करके रखती है. न्यूक्लियस के अंदर होता क्या है? जेनेटिक मटेरियल. तो न्यूक्लियोइड में भी जेनेटिक मटेरियल होता है. ऐसा तो नहीं होता कि बैक्टीरिया के पेरेंट्स नहीं होते, बैक्टीरिया के भी पेरेंट्स होते हैं और बैक्टीरिया के भी डॉटर सेल्स होती हैं. तो दे नीड टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, सो दे विल ऑल्सो हैव अ जेनेटिक मटेरियल, बट देयर जेनेटिक मटेरियल लाई नेकेड, एज इन बिकॉज इट इज नॉट कवर्ड. तो वी से दैट जेनेटिक मटेरियल लाई naked in the cytoplasm. ठीक है, naked in cytoplasm in a dense region called nucleoid. इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है, पर ये ऐसे ही साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है. तो लाई इन अ डेंस रीजन कॉल्ड न्यूक्लियोइड. तो न्यूक्लियोइड की अगर कोई हमसे डेफिनेशन पूछ ले, तो वी विल से न्यूक्लियोइड इज द डेंस रीजन
in which the in which genetic material is present in the prokaryotes but it does not have a membrane. ठीक है, और इसके अंदर we will say the genetic material is include genetic material is present inside nucleus, is present inside nucleus. अब दूसरी बात, दूसरी डिफरेंस क्या है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? तो द सेकेंड पॉइंट ऑफ थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इन फैक्ट इट इज दैट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इट दे डू नॉट ऑल्सो हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स. इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स नहीं होते. दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स. What is meant by membrane bound organelles? Example, membrane bound organelles होते हैं जैसे for example lysosomes, Golgi body, endoplasmic reticulum, ये सब इनमें नहीं होते. They do not have these organelles. ठीक है. On the other hand, eukaryotic cells have, they have membrane bound organelles. ठीक है. अच्छा, तो अगर मैं बात करूं कि अगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स नहीं है तो क्या सारे ऑर्गेनील्स एब्सेंट है? क्या सारे ऑर्गेनील्स में मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं? तो एक्चुअली एक ऑर्गेनील है जो दोनों में प्रेजेंट होता है एंड दैट इज राइबोसोम्स. तो राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ ऑफ देम. प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. ठीक है. इनमें दोनों में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बोथ ऑफ देम हैव राइबोसोम्स. राइबोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते. मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब क्या है? जिनके ऊपर एक कवरिंग होगी, और गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जो इन ऑर्गेनील को कवर करके रखी होती है. तो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं कुछ ऑर्गेनील्स, मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी. ठीक है. इन सबको हम सेल में डिटेल में पढ़ेंगे, इनका फंक्शन हो सकता है तुम भूल गए हो, विल बी डूइंग इट अगेन. बट अगर मैं राइबोसोम्स की बात करूं तो राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड. राइबोसोम्स के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती. ये पूरे एक स्ट्रक्चर होते हैं, ये पूरा पूरा एक स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें कोई कवरिंग नहीं होती. तो दैट इज वाई दे आर प्रेजेंट इन बोथ. राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील्स. इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, ये पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर होते हैं. मतलब इट्स लाइक कि उनकी बाउंड्री नहीं होती. ठीक है. तो अभी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में इतना ही डिफरेंस तुम्हें याद रखना है. ठीक है. इसके आगे का जो डिफरेंस है वो हमारा आएगा सेल यूनिट ऑफ लाइफ में. प्लीज वेट. Chemical equations
मुझे बताओ सीरत, तनिष्का, करमजोत, इज दिस क्लियर जो अभी हमने किया? ठीक है, सो नाउ अच्छा, तो द थिंग इज obviously the thing is eukaryotic and prokaryotic organisms are very different क्योंकि उनका सेल ही डिफरेंट है और सेल पूरी बॉडी बनाता है। तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स को एक किंगडम में नहीं रखना चाहिए, ये बात तो क्लियर है ना। तो द थिंग इज द टू किंगडम क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो अगर हम बात करें व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ आवर टू किंगडम क्लासिफिकेशन, दिस किंगडम डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, फोटोसिंथेटिक, नॉन फोटोसिंथेटिक, जो दोनों कैटेगरीज में फिट नहीं होते थे, ऐसे भी कुछ ऑर्गेनिजम्स थे। तो मतलब पॉइंट बीइंग दिस कि हमने बैक्टीरिया को और प्लांट को दोनों को एक ही किंगडम में रख दिया, बैक्टीरिया और प्लांट को दोनों को प्लांट किंगडम दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उन दोनों के पास सेल वॉल होती है। तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज टोटली रॉन्ग, बिकॉज जो बैक्टीरिया है दैट इज प्रोकैरियोटिक और जो प्लांट है वो यूकैरियोटिक है। इनके पास न्यूक्लियस नहीं है, इनके पास न्यूक्लियस है, ठीक है। तो द थिंग इज हम इन दोनों को एक ही किंगडम में कैसे रख दें? दिस इज वेरी रॉन्ग, क्योंकि उनका बेसिक स्ट्रक्चर ही डिफरेंट है। वी कैन नॉट कीप यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक इन द सेम किंगडम। सिमिलरली कुछ मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को भी एक ही किंगडम में डाल दिया। जैसे मल्टी सेलुलर हो गए प्लांट्स, ठीक है, और यूनिसेलुलर हो गया यूग्लेना, ठीक है, यूनिसेलुलर हो गया यूग्लेना। ऑल्दो यस दे बोथ वर फोटोसिंथेटिक, दोनों के दोनों अपना खाना बना लेते हैं, यूग्लेना भी बना लेते हैं। बट द पॉइंट इज प्लांट जो है वो मल्टी सेलुलर है और जो यूग्लेना है दैट इज यूनिसेलुलर। वी कैन नॉट पुट देम इन टू सेम किंगडम एज प्लांट्स। तो द थिंग इज ये बहुत गलत है कि हम मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर को एक ही किंगडम में फिट करने की कोशिश करें। दिस शुड नॉट बी डन। दैट इज वाई ये ना प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंशिएट कर रहा था, ना मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर के बीच में डिफरेंशिएट कर रहा था। और देयर आर सम ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, तो ये सारे इनको कहाँ डालें? वेयर डू वी पुट देम? क्या इनको एनिमल में डाल दें? बट ये तो यूनिसेलुलर है। या इनको प्लांट में डाल दें? तो दे डिड नॉट फिट इन आइदर did not fit in either of the categories. And take a look at fungi, fungus photosynthesize तो करती नहीं, तो उसको प्लांट में थोड़ी डाल सकते हैं, पर वो मूव भी नहीं करती तो उसे एनिमल में भी नहीं डाल सकते। तो ये भी डिफरेंस हो गई कि अमीबा, फंजाई को प्लांट एनिमल किसी में भी नहीं रखा जा सकता था। तो these were some disadvantages of the earlier system and you can read this later on, take a screenshot। इसको मैंने पॉइंट्स में मार्क कर रखा है कि देखो अर्लियर क्लासिफिकेशन में ब्लू ग्रीन एल्गे जो बैक्टीरिया था, ब्लू ग्रीन एल्गे, फंगस, मॉस, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबको प्लांट के अंदर डाल दिया गया था। दूसरी बात ये थी कि प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गे जो है इनको, ये प्रोकैरियोटिक थे और उनको यूकैरियोटिक में डाला हुआ था। ये मैंने अभी बताया, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है तो, और ब्लू ग्रीन एल्गे भी प्रोकैरियोटिक होता है। तो इन दोनों को हमें प्लांट के साथ डालना सही नहीं था। प्लांट में सारे यूकैरियोटिक थे पर ये दोनों प्रोकैरियोटिक थे, ठीक है। उसके अलावा क्लबाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा दे वर इंक्लूडेड अंडर एल्गे, एल्गे के अंडर रखा गया था इनको, बट ये यूनिसेलुलर थे। बाकी सारी एल्गे मल्टी सेलुलर थी,
ये दोनों यूनिसेलुलर थे। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट तो तुमसे कोई ये नहीं पूछने वाला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, वो तुमसे ये पूछने वाले कि स्पायरोगैरा को टू किंगडम में क्या प्रॉब्लम थी, या क्लमाइडोमोनास को टू किंगडम में क्या प्रॉब्लम थी। वो तुमसे स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स को पूछेंगे जो बाकी बच्चे मिस करेंगे। तो दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन बायोलॉजी। अगर तुम डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो यहीं से याद करना शुरू करना पड़ता है कि हर एक एग्जाम्पल को याद करना है, एग्जाम्पल नहीं छोड़ना है। एग्जाम्पल से ही MCQ बनता है और नीट में NCERT से बाहर नहीं आता। ये NCERT की एग्जैक्ट लाइंस हैं, बस उनको मैंने फॉर्मेट ऐसे कर दिया है सो दैट इट लुक्स सिंपल टू यू, राइट। तो अब बात आ रही है कि ये किंगडम ऑल्सो डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन फंजाई जो कि हेटेरोट्रॉफ थे, जो अपना खाना नहीं बना सकते थे, और ऑटोट्रॉफ थे ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स को भी प्लांट में डाल दिया और फंजाई को भी प्लांट में डाल दिया। फंजाई तो खाना ही नहीं बना सकता, तो दिस इज वेरी रॉन्ग। ऑल्सो एक और चीज यहाँ पे आ रही है, फंजाई की जो वॉल है, द वॉल ऑफ द फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन, और जो प्लांट की वॉल है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो इन दोनों के सेल वॉल है, पर इन दोनों के सेल वॉल का स्ट्रक्चर भी तो अलग है। ये काइटिन का बना है, काइटिन जो होता है एनिमल किंगडम से ज़्यादा मैच करता है, और सेलुलोज प्लांट में। तो फंजाई जो है प्लांट और एनिमल कहीं पे बीच में है वो, बिकॉज उसका सेल वॉल काइटिन की है। काइटिन जो है इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द कॉकरोच के शेल में। कॉकरोच इज एन एनिमल। तो इन दिस वे फंजाई इज मोर रिलेटेड टू एनिमल्स दैन प्लांट्स, पर उसको प्लांट में डाल दिया गया। तो ये डिसएडवांटेजेस एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा, काइटिन इज द सेल वॉल मटेरियल फॉर और ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया, प्लांट और फंगस। तो इफ यू रिमेंबर काइटिन इज फॉर फंगस देन यू हैव टू टिक इट। ठीक है, यू टेल मी, ये सारे के सारे एग्जांपल्स याद हो जाएंगे, येस और नो? ठीक है, कोई डाउट आ रहा है तो मुझसे पूछ लो। तनिष्का, सीरत, कोई डाउट? करमजोत, हाँ बोलो तनिष्का। थर्ड पॉइंट, ओके। थर्ड पॉइंट इज सेइंग कि the character it also grouped unicellular organisms and the multicellular organisms. So the thing is, if I show you image of Chlamydomonas, look, this is Chlamydomonas, ठीक है। तो ये साफ साफ दिख रहा है हमें कि ये जो Chlamydomonas है ये पियर शेप्ड होता है और ये सिंगल सेल है with two flagella. तो Chlamydomonas is single, it is unicellular. कैसा है? Unicellular. Chlamydomonas. And similarly Spirogyra. They both are unicellular. They only have one cell. एंड मल्टी सेलुलर कौन कौन है? मल्टी सेलुलर है हमारे प्लांट्स, जो बाकी के प्लांट्स हैं दे आर मल्टी सेलुलर, ऑल अदर प्लांट्स आर मल्टी सेलुलर। तो प्लांट्स के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं, इनके अंदर एक एक सेल होते हैं। माना कि ये फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बना सकते हैं, ऑटोट्रॉफ है, पर ये सिर्फ एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं। सो दे आर सेइंग कि यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों को प्लांट्स किंगडम में डाला था अरेनियस ने। तो दिस इज रॉन्ग, वी कैन नॉट कीप यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर इन वन किंगडम। ठीक है, यू कैन से क्लमाइडोमोनास के फ्लावर्स नहीं आते, उनके अंदर मल्टी सेल बॉडी नहीं होती, एटसेट्रा। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट इज, अब अगर हम इन्हीं किंगडम की बात करते जाएं तो अब बात आती है कि नए किंगडम को कैसे क्लासिफाई करें। नया किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कैसा है उसकी बात करते हैं। यू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
ऑलराइट, तो अब बात आती है कि अब हम कैसे क्लासिफाई करें ऑर्गेनिजम्स को. तो द थिंग इज द साइंटिस्ट R.H. Whittaker gave us a 5 kingdom classification. It gave a 5 kingdom classification. This is still followed, and that is why R.H. Whittaker is called father of the modern taxonomy. हमें ये भी पूछा जाता है कि who is the father of genetics, like Mendel. तो we could be asked who is the father of modern taxonomy. तो हम बोलेंगे आज हम जो क्लासिफिकेशन यूज करते हैं वो हम किसका यूज करते हैं, R.H. Whittaker का. तो जो आज का क्लासिफिकेशन मीन्स टैक्सोनॉमी, जो मॉडर्न टैक्सोनॉमी है उसका फादर कौन है, द वन हु गेव इट, एंड ही इज R.H. Whittaker. सो ही सेड कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन इज नॉट सफिशिएंट टू क्लासिफाई ऑर्गेनिज्म एज showed by the disadvantages, जो अभी हमने disadvantages पढ़े. So he gave 5 kingdoms और बहुत अच्छा इसने क्लासिफिकेशन दिया. That was not only based upon कि प्लांट्स में सेल वॉल होती है और एनिमल में नहीं होती, और बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है तो उसे प्लांट में डाल दो, ऐसा नहीं करना. तुम्हें एक पैरामीटर नहीं लेना, तुम्हें बहुत सारे पैरामीटर लेने हैं. तो यू टेक द टाइप ऑफ सेल, वी टुक टाइप ऑफ सेल, we took number of cells, we took cell wall, we took mode of nutrition, and other points in the consideration. हमने हर एक चीज को consideration में लिया और classification कर दी in the on Monera, Protista, Monera, Protista, fungi, Plantae, and Animalia, or the animal kingdom. Just write plant kingdom and animal kingdom. ठीक है, तो ये 5 किंगडम में हमने क्लासिफिकेशन कर दी, और इनके अंदर हमने कैसे क्लासिफिकेशन करी ये समझें. तो अगर हम बात करें टाइप ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, सेल वॉल, ठीक है, और इसमें हमने क्लासिफिकेशन करी है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल. ठीक है, तो द थिंग इज टाइप ऑफ सेल का मतलब है कि इज द सेल प्रोकैरियोटिक और इज इट यूकैरियोटिक. तो द थिंग इज प्रोकैरियोट्स ओनली फाउंड 1 किंगडम, सिर्फ एक ही किंगडम में प्रोकैरियोट्स हैं, बाकी सब में यूकैरियोट्स हैं. यानी कि सिर्फ एक ही में न्यूक्लियस नहीं होता, बाकी सब में न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनील होते हैं. ठीक है, ठीक है. तो नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो मोनेरा इज प्रोटिस्टा, वो दोनों के दोनों यूनिसेलुलर है, both of them are unicellular, but the thing is the fungi kingdom is having both unicellular and multicellular, and plants and animal both are multicellular and multicellular. यहाँ पे भी ठीक है. तो
तो दीज आर प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। तो द थिंग इज बहुत ही यहाँ पे क्लियर कट डिविजन है बिटवीन मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। दोनों के दोनों में यूनिसेलुलर होते हैं, ये बात तो मान ली, पर यूनिसेलुलर में एक के अंदर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं, दूसरे में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होते हैं। मोनेरा में न्यूक्लियस नहीं होता, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, ऐसे यूनिसेल मोनेरा जिनके अंदर गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइजोसोम्स होता है, वो प्रोटिस्टा में जाएंगे, वो भी यूनिसेलुलर है। इनके एग्जाम्पल अभी दूंगा तो क्लियर हो जाएगी बात। एग्जाम्पल इज, अगर तुम इसके अंदर लेना चाहो बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, देन वी ऑल्सो हैव साइनोबैक्टीरिया, तो ये ब्लू ग्रीन एल्गे जिसे बोलते हैं, तो वो सारे के सारे हैं मोनेरा में, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गे का नाम एल्गे है बट इट इज़ नॉट एल्गे, उसका नाम ब्लू ग्रीन एल्गे है पर वो एल्गे नहीं होता ब्लू ग्रीन एल्गे, इट इज़ एक्चुअली अ बैक्टीरिया और उसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब प्रोटिस्टा के अंदर वो सब आ गए जिनको कहीं जगह नहीं मिल रही थी, जिसको ना प्लांट में समझ पाते, ना फंगस में, ना एनिमल में, उनको सबको प्रोटिस्टा में डाल देते हैं गिवन कि वो यूनिसेलुलर है। तो इसके अंदर बहुत अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि प्रोटोजोअन्स, ठीक है, ऑल्सो मतलब विच इंक्लूड्स अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना एंड सो ऑन। तो ये प्रोटोजोअन सारे प्रोटिस्टा में आ जाते, ठीक है ना। तो अब फंजाई की बात करें, फंजाई तो हमें पता है, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, मशरूम्स आर द मोस्ट कॉमन वन, ठीक है, मशरूम्स आर फंगस, राइट। तो दीज आर फंगस, डैंड्रफ इज ऑल्सो फंगस, ओके। प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में भी यहाँ सारे प्लांट्स ही प्लांट्स हैं, मैंगो ले लो या कोकोनट ले लो या कोई भी ले लो, ऑल दी प्लांट्स, दीज आर प्लांट्स। एनिमल्स तो हमें पता ही है, ये फ्रॉम इंसेक्ट्स टू बर्ड्स टू रेप्टाइल्स, वो सारे के सारे एनिमल्स में, ठीक है। तो अब बात आ रही है कि इनकी सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा हैव सेल वॉल एंड इट्स सेल वॉल इज मेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस। प्रोटिस्टा में भी सेल वॉल होती है, इट मे बी मेड ऑफ, it has cell wall, yes, and made of peptidoglycans, yes, and it varies मतलब कभी कभी सेल वॉल पेलिसिल की बनी होती है, सेलुलोज की और अदर चीज़ें भी होती हैं, पेलिसिल, सेलुलोज और एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि ये बहुत अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो इनमें अलग अलग टाइप की सेल वॉल होती है। फंजाई की सेल वॉल होती है, yes, and it is made of chitin, जो कि कॉकरोच के शेल में भी होता है। प्लांट्स में भी yes, and it is made of cellulose, and animal cells do not have a cell wall, animals में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। न्यूट्रिशन की बात करें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटो और हेट्रो दोनों हो सकता है। Some bacteria can synthesize their own food, for example cyanobacteria, and some protistas can also synthesize, or they may be heterotroph भी हो सकते हैं। Fungi are always heterotroph, plants are almost always autotroph, and animals are almost always heterotroph. तो दिस इज द डिटेल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम, जिसमें हमें एक चीज़ पे नहीं देखा, हमने बहुत सारी चीज़ों पे देखा। इनफैक्ट 4 हमने यहाँ पे लिस्ट करे, इन चारों के बेसिस पर मोनेरा इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोटिस्टा एंड प्रोटिस्टा डिफरेंट फ्रॉम फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इज दिस
क्लासिफिकेशन क्लियर? किसी इसमें से कोई भी पॉइंट पे डाउट है तो प्लीज आस्क मी, अगर क्लियर है तो प्लीज टाइप क्लियर, या फिर स्पीक क्लियर है सबको? ऑलराइट, तनिष्का क्लियर? ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है ना कि क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है नीट में सीधे आए, कभी कभी कोई एक्सेप्शंस पे भी आ जाते हैं, बहुत सारे एक्सेप्शंस हमारे पास होते ही हैं। तो लेट अस टॉक अबाउट सम एक्सेप्शंस हियर जिससे नीट में क्वेश्चन आ सकते हैं, और वो एक्सेप्शनल क्वेश्चंस है कुछ इस तरीके से। तो यूनिसेलुलर फंजाई का एग्जाम्पल दो। तो यूनिसेलुलर फंजाई, क्योंकि हमने बोला फंजाई जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, तो यूनी मल्टी भी हो सकता है और यूनी भी हो सकता है। तो ज़्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं। ईस्ट इज यूनिसेलुलर। व्हाट इज इट्स नेम? इट्स नेम इज Saccharomyces cerevisiae, ये इसका साइंटिफिक नेम है, Saccharomyces cerevisiae। दिस इज साइंटिफिक नेम ऑफ ईस्ट एंड दिस इज वन ऑफ द यूनिसेलुलर फंगस। ठीक है, दूसरी चीज, इफ आई आस्क यू अ हेट्रोट्रॉफिक प्लांट, ऐसा प्लांट है जो खाना खुद नहीं बना सकता। देखो, देयर आर प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप जो कि मॉस्किटोज को खाता है या इंसेक्ट्स को खाता है, राइट। पर ऐसे भी ऐसा भी एक प्लांट है जो कभी अपना खाना खुद नहीं बनाता, दैट इज कस्क्यूटा और दी अमरबेल। वो क्या है? इट हैज़ लॉस्ट इट्स क्लोरोफिल, इसके पास अब क्लोरोफिल ही नहीं है, तो ये खाना खुद बनाता ही नहीं। इट इज अ प्लांट पैरासाइट ऑल्सो नोन एज अमरबेल, इज अ प्लांट पैरासाइट। तो ये एक हेट्रोट्रॉफ हो गया, ठीक है, इट इज अ प्लांट पैरासाइट, राइट। तो ऐसे कुछ चीजें आ सकती हैं जो कि हमारे को टेस्ट करती हैं ऑन द बेसिक नॉलेज कि भाई अच्छा फंजाई यूनिसेलुलर भी हो सकता है, तुमने बोला तो एग्जाम्पल दो। तो यूनिसेलुलर फंजाई का एक ही एग्जाम्पल है, बाकी ज़्यादातर मल्टी सेलुलर हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिसेलुलर फंजाई। हेट्रोट्रॉफ प्लांट सिर्फ एक ही है, तो वो भी याद रखना है, कस्क्यूटा, दैट इज अमरबेल, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ पैरासाइट, तो इट डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द प्लांट, ठीक है। तो अब बात करते हैं, पहला किंगडम पे आते हैं, दैट इज किंगडम मोनेरा। तो मोनेरा पे अगर मैं आऊं, let us talk about मोनेरा। तो मोनेरा में सोल मेंबर्स बैक्टीरिया और बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स है। मोनेरा में यू कैन क्लासिफाई मोनेरास इनटू 3 टाइप्स। ये तीनों थोड़े थोड़े अलग हैं। तो वन इज द आर्के बैक्टीरिया, one is the eubacteria, one is the mycoplasma। आर्के बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? आर्के बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। देखो, आर्के बैक्टीरिया जो होता है, आर्कियोलॉजिकल वर्ड है इसके आगे। आर्के मतलब आर्काइक, मीन्स इंग्लिश बहुत ज़रूरी है बायो के लिए। यू मस्ट हैव अ गुड वोकैबुलरी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड डिफिकल्ट वर्ड्स इन बायोलॉजी। यू नीड एन इंग्लिश वोकैबुलरी जो बहुत अच्छी हो। तो मैं तुम्हें साथ साथ इंग्लिश की कुछ वर्ड्स बताता रहूँगा दैट यू हैव टू ऐड इन योर वोकैबुलरी, ठीक है। नॉट ओनली इट विल हेल्प इन बायोलॉजी बट ऑल्सो इन इंग्लिश, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो
आर्काइक का मतलब होता है वेरी ओल्ड और प्रिस्टाइन. प्रिस्टाइन इज ऑल्सो मीन्स ओल्ड. आर्काइक. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये वो सर्वे, दिस इज द ऑर्गेनाइजेशन जो पुरानी चीज़ों को निकालता है, राइट. तो इसीलिए आर्के बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया. Yeah, so I was saying, give me 1 minute. Yes, so Archaebacteria, the word suggests old type, pristine type, पुराना टाइप. तो Archaebacteria पुराने लोगों की तरह हैं. पुराने लोग क्या होते हैं? टफ. मतलब हम तो इतने टफ नहीं हैं, हम तो बहुत सेंसिटिव हैं, हम तो बाहर ही नहीं जाते ना, हम उन पुराने लोगों की तरह रह सकते जो इतने टफ लोग थे, राइट. तो और इसी तरीके से बैक्टीरिया के भी दो टाइप हैं, एक पुराने बैक्टीरिया, एक न्यू बैक्टीरिया. यूकैरियोटिक में भी वर्ड आया था, यू स्टैंड्स फॉर न्यू टाइप ऑफ बैक्टीरिया. तो जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं दे आर वेरी टफ बैक्टीरिया. टफ मतलब बहुत हट्टे कट्टे बैक्टीरिया हैं. ये ऐसे बैक्टीरिया हैं जो ना हाई टेम्परेचर से डरते हैं, ना किसी एसिड से डरते हैं, और ना किसी होस्टाइल एनवायरनमेंट से डरते हैं. तो दे आर द मेन डिफरेंस बिटवीन आर्के बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया इज दे हैव सेल वॉल डिफरेंसेस. इन दोनों के अंदर सेल वॉल का बहुत डिफरेंस है, ठीक है. तो आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में दे आर रेजिस्टेंट टू extreme, they are resistant to extreme hostile conditions due to differences in their cell wall structure. इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है. यू कैन सी ठीक है. तो यू कैन सी आर्के बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकेंस नहीं होता, इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेंस होता है यू बैक्टीरिया में. तो दिस इज व्हाई, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, दे लैक पेप्टाइडोग्लाइकेंस. पर पेप्टाइडोग्लाइकेंस नहीं होता तो बाकी मटेरियल तो इनके अंदर भी होता है. दे लैक पेप्टाइडोग्लाइकेंस. and eubacteria, they are mainly heterotroph and autotrophic bacteria. And autotrophic bacteria with a newer cell wall, with a cell wall that contains पेप्टाइडोग्लाइकेंस. इनके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकेंस होता है. और एक खास बात, माइकोप्लाज्मा एक ऐसा बैक्टीरिया बोलो या ना बैक्टीरिया मत बोलो, क्योंकि दिस इज एन एक्सेप्शन. अगेन इंपॉर्टेंट फॉर नीट, एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. इस बायोलॉजी अगर तुमने ली है तो एक्सेप्शंस याद करना, एग्जाम्पल्स याद करना, ये तुम्हें और बच्चों से आगे लेके जाएगा. और बच्चों को भी बाकी चीज़ें पता होंगी, थ्योरी पता होगी, पर उन्हें एग्जाम्पल्स याद नहीं होंगे तो तुम आगे जाओगे. तो यू नीड टू लर्न द एग्जाम्पल्स एंड द एक्सेप्शंस हर एक केस के. तो यहाँ पर द थिंग इज दे कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल. इनके अंदर सेल वॉल ही नहीं होती. तो कैन वी एक्चुअली कॉल देम बैक्टीरिया? आर दे एक्चुअली बैक्टीरिया? क्योंकि सब बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है, पर माइकोप्लाज्मा एक ऐसा क्रिएचर है इस दुनिया में दैट लैक अ सेल वॉल, बट वो प्रोकैरियोट है. तो ऐसी चीजें बायो में बहुत सारी होंगी, तुम्हें आगे समझ आएंगी धीरे धीरे. मतलब द पॉइंट इज बायो इज नॉट लाइक कि एक रूल से चलने वाली चीज.
वी आर स्टडिंग द लाइफ एंड लाइफ हैज वेरियस फॉर्म्स. लाइफ की साइंस को, लाइफ साइंस को बायोलॉजी बोलते हैं, राइट. बायोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ साइंसेस. एंड लाइफ इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्लेक्स. तो अगर लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स है तो लाइफ साइंसेस भी बहुत कॉम्प्लेक्स है. अब मोनेरा में हम बोलते हैं, मोनेरा के अंदर सोल इनहैबिटेंट्स ऑफ दिस किंगडम, इस किंगडम के सिर्फ और सिर्फ जो इनहैबिटेंट्स हैं दे आर बैक्टीरिया. एंड बैक्टीरिया एक्चुअली हैव सेल वॉल, बट बैक्टीरियाज यू, जैसे आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, दे हैव सेल वॉल. बट माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया से बिल्कुल सिमिलर होता है, प्रोकैरियोटिक होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते, पर इसके पास सेल वॉल नहीं होता. तो दिस इज अ वियर्ड थिंग, और ये एक एक्सेप्शन है कि माइकोप्लाज्मा ऑल्सो फॉर्म, दे आर द स्मॉलेस्ट, दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स. दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स. ये वो लिविंग सेल्स हैं जो बहुत ही छोटे होते हैं. इतने, इनसे छोटे आज तक हमने कोई लिविंग सेल नहीं देखा है. तो इसका एग्जाम्पल है PPLO, जो कि लंग के अंदर डिजीज कॉज करता है. इसको बोलते हैं प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. PPLO इज एन एग्जाम्पल ऑफ माइकोप्लाज्मा. इसकी फुल फॉर्म क्या है? इट इज अ प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स. निमोनिया जो होता है एक बैक्टीरिया है, बट दिस इज अ प्लूरो. प्लूरो मतलब होता है फॉल्स. अगेन एक बायो में इंग्लिश की टर्म प्लूरो. प्लूरो मीन्स फॉल्स, नहीं, प्लूरो मीन्स फॉल्स लाइक, ठीक है. तो प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म मतलब दे आर नॉट लाइक, दे आर लाइक निमोनिया बट दे आर नॉट निमोनिया, ठीक है. तो इज द डिफरेंस बिटवीन RKU एंड माइकोप्लाज्मा क्लियर? येस और नो? किसी पे डाउट है तो प्लीज आस्क मी अगेन. They both are actually archaebacterias are only autotrophs. So they are, sorry, heterotrophs, and some of them also might have autotrophic. But the thing is, ज़्यादातर heterotrophs और autotrophs यू बैक्टीरिया के पार्ट है. ये ज़्यादातर heterotrophs है, ठीक है. तो इनको हम देखते हैं कि ये कैसे सर्वाइव करते हैं, ये हैं क्या. तो इसके अंदर ये एक पॉइंट और आ जाएगा इनके बीच में. येस, दैट दे विथस्टैंड extreme conditions. They cannot withstand extreme conditions. इन दोनों के एग्जाम्पल दे देता हूं. आर्के बैक्टीरिया के एग्जाम्पल जो हम पढ़ने वाले हैं, दे आर थर्मोफिलम पेंडेम्स, ठीक है. यू बैक्टीरिया का एग्जाम्पल यू कैन राइट लैक्टोबैसिलस, जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, वो यू बैक्टीरिया है, ठीक है. और माइकोप्लाज्मा का तो एग्जाम्पल मैंने दे दिया PPLO, ठीक है. अब बात आ रही है कि हम आर्के बैक्टीरिया को और डिटेल में पढ़ेंगे, बट दिस वी विल डू tomorrow at 10 AM. Are you all free at 10 AM tomorrow? Or should I delay? Sir, evening time hai. Evening time. Alright, evening I can try at 7 PM. Are you all free at 7? Yes, sir. ठीक है. All right. So the thing is, जो biology classes हैं, they will only occur at Saturday and Sunday.